all to please switch off your mics and cameras. Thank you. Very good afternoon to respected dignitaries, governing body members of RAB, Director RAB, Dr. Vandana Siroha Ma'am, Gurujans. I welcome you all in another intellectual session of Gyan Ganga webinar series. I, Dr. Garima Singh, on behalf of RAB, welcome you all for today's session. On the onset, we would also like to express our heartfelt gratitude and welcome our mentors who has always been there to guide, motivate, and encourage us for the sustenance of this series. Respected graduate Sri Deven Kuduraji, President of GB, RAB, respected graduate Sri Rajesh Kuteja Sir, respected Dr. Vandana Siroha Ma'am, Director RAB. Today's guest speaker is Dr. Nagendra Pal Sir, CRAB Guru, in Shah Sutra, Himachal Pradesh, who has joined us for the today's 267th episode of this knowledge voyage. Let us begin the session by seeking the blessings of Lord Dhanvantari. Namami Dhanvantari Parmadidevam Surarivandipadipagmam Loke Janaram Vainityunasham Bhataramisham Vidyashadinam. Om Dhanvantari Namah. Now, I would like to introduce today's expert, Dr. Nagendra Pal Sir, who is going to throw light on the topic of examination of patients with anorectal diseases. Dr. Nagendra Pal Sir is an accomplished Ayurvedic physician and senior surgeon with all over 3 decades of professional experience. He completed his BMS in 1989 and MS in Shalya Tantra from RGG PG Ayurveda College, Pakrola, Himachal Pradesh in 2003. He served the Himachal Pradesh Ayush Department as Ayurvedic Medical Officer and later as Senior Ayurvedic Chikitsak until 2020. He currently serves as Director and Senior Surgeon at Srimati Prakash Dev Memorial Hospital and Honorary Consultant at Roshan Hospital. Since 2023, he has always been associated with Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth as a guru in Char Sutra. His expertise includes Shalya Tantra, Char Sutra, and clinical Ayurveda. Now, I would like to invite Sir to proceed with the lecture. Thank you, sir. धन्यवाद गरिमा जी. May I start? Yes, sir. Good afternoon, everybody. आज की 267वीं RAB की ये जो ज्ञान गंगा अविरल यात्रा है ज्ञान की, इस प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले मैं सर्वप्रथम वंदना करना चाहूँगा आयुर्वेद के आदिदेव भगवान धन्वंतरी जी की, जिनके कारण ये ज्ञान हम लोग सब लोगों को प्राप्त हुआ। या इस यात्रा में धन्वंतरी जी से समस्त ऋषिगण जिन्होंने इस ज्ञान को धरती तक पहुंचाया, समस्त ऋषिगण, उसके पश्चात समस्त गुरुजन, प्रथम गुरु माता पिता और स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय पर्यंत समस्त गुरुजन जिनके माध्यम से हमें यह ज्ञान आज प्राप्त हुआ है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आयुष मंत्रालय भारत सरकार का कि जिन्होंने राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ जैसी संस्था की स्थापना की। विशेष तौर पर आयुष सचिव हमारे वैद्य पद्म भूषण वैद्य राजेश कुटेचा सर और राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के गवर्निंग बॉडी अध्यक्ष पद्म विभूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा सर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, होल स्टाफ, और राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की बहुत ही ऊर्जावान और डायनेमिक डायरेक्टर वंदना सिरोहा मैडम, जिन्होंने राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के माध्यम से ज्ञान गंगा जैसा एक कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसके कारण मेरे जैसा भारतवर्ष के दूर दराज के प्रदेश हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा करने वाला सामान्य चिकित्सक भी इस अपने जो विचार हैं इनको एक देश के मूर्धन्य प्रतिष्ठित आयुर्वेद विद्वानों के साथ संवाद कर सका है तथा राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के होनहार युवा चिकित्सकों के साथ अपनी इस प्रस्तुति को साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करूंगा कि अपनी बात को साधारण तरीके से, व्यावहारिक तरीके से और शास्त्रोक्त भाषा में
या शास्त्रोक्त तरीके से युक्त है उसी में रखने का प्रयास करूंगा, ताकि विषय को आसानी से समझा जा सके। हमारे युवा चिकित्सक जो देश का भविष्य है, आयुर्वेद का भविष्य है। आज का विषय वास्तव में रोगी रोग परीक्षा, क्योंकि इंडिविजुअल किसी एक डिजीज के विषय पर प्रस्तुतियां होती रहती हैं, लेकिन किसी इंडिविजुअल विषय पर पहुंचने से पहले हमें उसका प्रॉपर डायग्नोसिस, या कोई भी रोगी हमारे पास आता है वो किस तरह से हमें प्रेजेंट करता है, फर्स्ट राइट, किस तरह से अपने उसको प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट ही करता हूं। तो रोगी रोग विषय वास्तव में सभी लोग हम रोज की तरह, जैसे हमारे सारे चिकित्सक हैं, स्टूडेंट हैं, रोगी देखते हैं, रोग देखते हैं। शास्त्रों में इसके एक प्रॉपर तरीका बताया गया है, रोगी की परीक्षा और रोग की परीक्षा। रोगी परीक्षा के हमारे शास्त्रों में, चाहे सारी बृहत्त्रयी की बात करें, अन्य ग्रंथों की बात करें, भिन्न भिन्न प्रकार की विधियों का वर्णन किया गया है। जैसे सर्वप्रथम त्रिविध रोगी परीक्षा है, जो मोस्टली हम प्रैक्टिस करते हैं। इंस्पेक्शन है, पैल्पेशन या हिस्ट्री, जैसे दर्शन, स्पर्शन और प्रशन। शास्त्र में त्रिविध परीक्षा का महत्व बताया गया है कि इसी में ऑलमोस्ट काफी परीक्षाओं का जो है समावेश हो जाता है। क्योंकि जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो सर्वप्रथम उससे प्रश्न करते हैं, हिस्ट्री उससे पूछते हैं, उसके पश्चात इंस्पेक्शन होता है, उसके पश्चात स्पर्शन, इसकी हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। इसी तरह से शास्त्रों में पंचविध परीक्षा, हर प्रकार की परीक्षा का अपना अपना महत्व है। पांचों इंद्रियों के द्वारा जो हम परीक्षा करते हैं वह, जैसे दर्शन, स्पर्शन, श्रवण, घ्राण, रसना, तो ये पंचविध परीक्षा। इसी तरह सुश्रुत संहिता में इन 5 परीक्षाओं के साथ प्रश्न परीक्षा को, हिस्ट्री को साथ में जोड़ करके षड्विध परीक्षा बताई गई है। इसी तरह से अष्टविध परीक्षा क्या बताया गया है, जैसे नाड़ी, मल, मूत्र, जीवा, शब्द, स्पर्श, दृक, आकृति। मूल उद्देश्य सभी का वही है कि हम जब रोगी को हमारे पास आता है तो हम उसको प्रॉपर कैसे कैसे उसका डायग्नोज कर पाते हैं, किस तरह से उसके रोग की तह तक पहुंच पाएंगे। अगर हम रोग का डायग्नोसिस अच्छे से करेंगे तभी हम चिकित्सा कर पाएंगे। इसी तरह आचार्य चरक ने 10विध परीक्षा का भी वर्णन किया है। प्रकृति, विकृति, सार, सहनन, प्रमाण, सातम, सत्व। स्क्रीन पे चलो सभी लोगों ने पढ़ रखी है, आहार शक्ति, इनको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन मुख्य तौर पर जो रोगी परीक्षा है, इसी के ऊपर हम सारी परीक्षाओं का समावेश लगभग त्रिविध परीक्षा के अंतर्गत हो जाता है। इसी तरह रोग परीक्षा के लिए भी आयुर्वेद में निदान पंचक की सहायता से हम रोग परीक्षा करते हैं। निदान, पूर्व रूप, रूप उपश्रय और संप्राप्ति। तो इसकी भी इसी तरह से, जैसे जब हम ये परीक्षाएं करते हैं तो मुख्यतः आज का हमारा रोग तो बहुत ज्यादा है शास्त्र में, लेकिन आज का हमारा मूल विषय है कि गुदा रोगों से संबंधित रोगी की परीक्षा किस तरह से करनी है ताकि हम प्रॉपर डायग्नोसिस कर पाए। क्योंकि गुदा के एरिया में वास्तव में कुछ गिने चुने 5, 7, 6, 7, 8 रोग होते हैं जिन्हीं को हमने बार बार परीक्षा करने है। लेकिन कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी फील्ड, जब तक हम उसका बार बार अभ्यास नहीं करेंगे, सतत अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों को उसमें महारत हासिल नहीं होती। कोई भी विषय छोटा नहीं हो सकता। एक बार सुनेंगे, अगली बार सुनेंगे, 10 बार सुनेंगे तो 10वीं बार भी हमें उसमें नई चीज मिलेगी। तो मैं नए विद्यार्थियों से अवश्य कहना चाहूंगा कि बेसिक प्रिंसिपल पे स्टिक रहें। और ऐसा नहीं है कि एक बार दो बार देख लिया तो हो गया, नहीं, जितना बार बार अभ्यास हो नई चीजें मिलेंगी। खैर, रोग जो गुदा के अंतर्गत, गुदा मार्ग के अंतर्गत या रेक्टम के अंतर्गत आते हैं, उनमें हम सभी परिचित हैं कि हेमरॉइड सबसे प्रमुख रोग है, अर्श रोग है, भगंदर है, फिस्टुला है, एनल फिशर है, एक्यूट क्रोनिक, रेक्टल पॉलिप, एनोरेक्टल एब्सेसिस है, इशियोरेक्टल पेरियनल एब्सेसिस है। इसी तरह से अर्बुद है, दैट मे बी बेनाइन, दैट मे बी मैलिग्नेंट। रेक्टल प्रोलैप्स के केसेस होते हैं, पार्शियल है, कंप्लीट है। इस तरह क्रोन्स डिजीज है, अल्सरेटिव कोल।
स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस लार्ज इंटेस्टाइन में, ट्यूबरकुलोसिस इंटेस्टाइनल है लेकिन रेयरली है, थोड़ा पाइलोनाइडल साइनस है, प्रोराइटिस अंधेरा। तो इसी तरह जिन रोगों का मैं नाम लिया उनकी एक जस्ट एक थोड़ी सी झलक के, जैसे जो स्लाइड्स हम बता रहे हैं, जो हेमरोइड्स की जैसे दो पहले या दूसरे नंबर पे हेमरोइड्स की स्लाइड्स है, तीसरे नंबर पे पेरिएनल एब्सेस में लिखा हुआ है जैसे फिस्टोडेन करने, ये जस्ट फॉर डिफरेंशिएशन है कि ये जो रोग है, कई बार क्या होता है कि रोगी हमारे पास है, रोगी जैसे ही हमारे क्लिनिक में एंटर होता है वो मैक्सिमम 90% पेशेंट्स का ये होता है कि डॉक्टर साहब मुझे पाइल्स हो गया, बवासीर हो गया। चाहे पेशेंट को दर्द है, चाहे स्वेलिंग है, चाहे पेन है, चाहे कुछ भी है, लेकिन उसका यही एक अप्रोच रहती है। लेकिन ये हमने फाइंड आउट करना है कि वास्तव में उसको है क्या, और उसको हम रोगी की परीक्षा से, प्रश्न पे जो परीक्षाओं की हम बात करने जा रहे हैं उसी से करेंगे। तो इसी तरह नेक्स्ट वाइज वैसे नंबर 4 पे ये पेरिएनल हेमेटोमा है, जैसे कलेक्शन ऑफ ब्लड है सबक्यूटेनियसली। इसी तरह से इस ये जस्ट लुक है कि एक फिस्टुला का एक्सटर्नल ओपनिंग है नंबर 1 पे, जबकि सेकंड स्लाइड पे एक फिशर का वुंड है। थर्ड पे आप देखेंगे लेफ्ट साइड से तो प्लूराइटिस, यानी काफी जो ईचिंग की समस्या है, काफी प्रोटेक्शन आई है। और फोर्थ पे इसी तरह हेमरोइड्स का ही है लेकिन अंदर से ब्लीडिंग हो रहा है। इसी तरह जो पार्श बात कर रहे प्रोलैप्स की है, ये कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स का पेशेंट है। ये जस्ट फॉर लुकिंग के एक डिफरेंशिएट हम कर पाए, जब हम आगे चल के इनके डिटेल करेंगे तो हमारे माइंड में एक पिक्चर रहे। जो विद्यार्थी इस फील्ड से नहीं भी जुड़े हुए हैं अन्य लोग, उनके लिए एक आसानी हो जाएगी कि समझने के लिए। इसी तरह ये फिस्टुला की ओपनिंग है नेक्स्ट लाइन में। इसी तरह से अब हम आते हैं डायग्नोसिस करेंगे, एग्जामिनेशन की जहां तक बात है तो प्रश्न परीक्षा की हम बात करते हैं। सर्वप्रथम प्रश्न परीक्षा में जब हम रोगी से पूछते हैं, पेशेंट हमें हिस्ट्री देता है, व्हेन पेशेंट कम टू अवर क्लिनिक ही सेज 4-5 मेन 6 सिम्टम्स होते हैं, वही है, उसी की हमने डिटेल करनी है बहुत बारीकी से, और उसी से एग्जामिनेशन करना है, उसी से डायग्नोसिस करना है। सर्वप्रथम जैसे ब्लीडिंग की है, डिस्चार्ज है किसी टाइप का, या तो पेन होगी, या उसकी कोई एबनॉर्मल बाउल हैबिट हो सकती है, प्रोलैप्स हो सकता है, एक्सटर्नल ग्रोथ हो सकती है, या जैसे प्रोराइटिस अनाई का हम बता रहे पेट लॉस हो गया, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स है, कैक्सिया, तो दिस टाइप की। अब हम सर्वप्रथम बात करेंगे ब्लीडिंग की। वास्तव में दूधा मार्ग के द्वारा ब्लड का आने का मतलब बवासीर ही नहीं है, क्योंकि रोगी तो वास्तव में यही बोलेगा। अब चिकित्सक के लिए विद्यार्थियों का प्रश्न है कि ब्लड आता है तो ब्लडिंग में हमने क्या क्या चीजें मुख्य तौर पर देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि अमाउंट ऑफ ब्लड, अमाउंट ऑफ ब्लड कितना मात्रा में ब्लड आ रहा है, या इन ड्रॉप्स में है, इन स्ट्रीम में है, या स्ट्रेन्स या क्लोज के ऊपर, क्योंकि इन सभी चीजों का बहुत अधिक महत्व है। मान लो कई बार ड्रॉप्स में ब्लड आता है तो समटाइम ब्लड में कम्स फ्रॉम द फिशर, समटाइम पाइल्स में से ब्लड आ सकता है। मोस्टली जो इन स्ट्रीम ब्लड आता है वो हेमरोइड्स का ब्लड होता है। और स्ट्रेन ऑन क्लोथ्स के ऊपर अगर कई बार हल्का सा स्ट्रेन ही पड़ता है तो वो चांसेस ज्यादातर या तो एक्सटर्नल पाइल कोई रप्चर्ड है छोटा, या उसमें से जो हेमरोइड्स है, सॉरी हेमरोइड एनल फिशर, स्ट्रेन ऑन क्लोथ एनल फिशर में मिलेगा, या एक्सटर्नल हेमरोइड, स्मॉल एक्सटर्नल हेमरोइड्स कई बार अल्सरेटेड हो जाता है। उसके पश्चात हम देखते हैं कि कलर क्या है ब्लड का। ब्लड का कलर ब्राइट रेड है, डार्क रेड है, या टोटली डार्क ब्लैक ब्लैक है। सिंपल बात है कि अगर व्यावहारिक तौर पर चलें तो ब्राइट रेड ब्लड अगर किसी पेशेंट से आ रहा है तो ब्राइट रेड ब्लड इज कमिंग, अंडरस्टैंडेबल है, इट इज कमिंग फ्रॉम द एनल कैनाल और लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम। अगर डार्क रेड ब्लड आ रहा है, blood is coming above the rectum, that may be from the sigmoid colon or colon, large intestine, ascending colon, descending colon. और थर्ड पार्ट अगर ब्लैक, इफ ब्लैक ब्लड तो ब्लैक ब्लड मीन्स मेलिना भी कहते हैं, तो इट इज फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन हायर देन द लार्ज इंटेस्टाइन, ये ब्लड आ रहा है
तो हमारे काफी डायग्नोसिस जो अगर हम एक एक पॉइंट के ऊपर थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे, सिर्फ ब्लीडिंग सोच के बात खत्म कर देंगे तो बात नहीं बनेगी। अगर इसी को हम फाइन से हिस्ट्री टेके कह सकते हैं, इसी के आधार पर हम अगला फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। थर्ड चीज हम देखते हैं ब्लीडिंग के अंदर के रिलेशन विद द फीसिस। फीसिस के साथ रिलेशन क्या है ब्लड का? ब्लड क्या मिक्स्ड ब्लड आ रहा है, या स्टूल के सरफेस पे ब्लड आ रहा है, या ब्लड स्टूल से सेपरेट आ रहा है, या टॉयलेट पेपर के ऊपर सिंपल ब्लड आ रहा है। इसी में भी अगर हम बात करें तो ब्लड मिक्स्ड फीसिस आ रहा है, इट मीन्स के ब्लड सिग्मोइड कोलोन से हायर एरिया से आ रहा है, जहां पर स्टूल की हार्डनेस नहीं होती, स्टूल सॉफ्टनेस होती है, दैट अलाउज द ब्लड टू मिक्स विद इन द स्टूल, मिक्स हो सके, इसी मिक्स्ड फॉर्म में आएगा। तो इसलिए हमारा डायग्नोज होता है कि हमारे जो पेशेंट के अंदर पैथोलॉजी हो पर्टिकुलरली उस स्थान पे है। अगर सरफेस के ऊपर आता है ब्लड, तो सरफेस के ऊपर या तो रेक्टम से आ सकता है या एनल कैनाल से मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है। जैसे एनल कैनाल से ब्लड आएगा तो एक लीनियर वे में, अब उसका भी एक लीनियर वे में आ सकता है, एक फिशर है, उससे स्टूल जब हार्ड स्टूल रगड़ लग के निकलेगा तो उसमें लाइन के रूप में ब्लड आएगा। सम टाइम पेशेंट कंप्लेंट के ब्लड अगर उसको बारीकी से पूछेंगे, अदरवाइज तो पेशेंट से नहीं कर पाता इतना, ब्लड फीसिस के अलावा एक्स्ट्रा टाइम में भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि विद स्टूल ही ब्लड आए, उसका अपना डायग्नोसिस है। देखिए कई बार क्या होता है कि सपोज रेक्टम में कोई ग्रोथ है, या कोई बच्चा है उसमें पॉलिप का केस है, या समटाइम जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो मान लो अल्सरेटिव ग्रोथ है, प्रोलिफरेटिव ग्रोथ है, तो उसमें ब्लीडिंग या रात भर या रात को के समय या किसी भी टाइम 2-4 घंटे तक उसमें हल्का रिसाव होता रहता है ब्लड का, और जैसे ही रेक्टम उसमें फुलनेस हो जाती है तो हमारे रेक्टम से मैसेज चला गया ब्रेन में कि रेक्टम इज फुल, डिफिकेशन की डिजायर होगी, और देखिए स्टूल पास करने जाएगा, स्टूल पास करने जाएगा तो स्टूल के, हालांकि स्टूल पास नहीं होगा, काफी मौके पे हो सकता है अकेला ब्लड उसमें से गैसेस प्लस ब्लड ही निकले। तो कई बार अकोमोलेशन ऑफ ब्लड जब सीए के केस रात भर का हो गया तो अर्ली मॉर्निंग में कॉल आ जाती है डिफिकेशन की, तो उसमें हम उस ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। ओल्ड एज पेशेंट है चाहे यंग एज भी हो, लेकिन अगर इसका एक मॉर्निंग स्पूरिस डायरिया की अगर प्रॉब्लम है तो हमारा जो डायग्नोसिस है वो ट्यूमर की तरफ या सीए की तरफ जा सकता है। और ब्लड इन द टॉयलेट पेपर, पहले हम बात की ब्लड टॉयलेट पेपर फिशर का या एक्सटर्नल हेमराइड्स में हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर चाइल्ड, हमारे पास छोटा बच्चा भी आता है, लोगों को तो उसी में भी कहते हैं जी बाबा सिर होगी, पाइल्स हो गया, लेकिन वास्तव में जब तक अनटिल और अनलेस हम उसको एक्सक्लूड ना कर दें कि पॉलिप नहीं है, हम फर्स्ट डायग्नोज शुड बी पॉलिप। अगर पॉलिप नहीं है तब तक, तब तो ठीक है, अदरवाइज फर्स्ट डायग्नोज शुड बी पॉलिप। बच्चों में ज्यादातर पाइल्स अक्सर बहुत कम होती है, तो पॉलिप की संभावना ज्यादा। सेकंड, नेक्स्ट सिम्टम होता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज अदर देन ब्लीडिंग, डिस्चार्ज में भी हम ये देखते हैं कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है। डिस्चार्ज में म्यूकस डिस्चार्ज हो सकता है, पस डिस्चार्ज हो सकता है, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज हो सकता है। तो इनके ऊपर भी निर्भर करता है कि मान लो अगर पस टाइप आ रहा है तो दैट में भी एब्सेस हो सकती है, या पस प्लस ब्लड मिक्स आ रहा है तो उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट को हो सकता है, छोटा अल्सर कोई ब्लीड कर रहा है, म्यूकस प्लस ब्लड है, म्यूकोइड डिस्चार्ज ज्यादा है, जैसे क्रोहन्स डिजीज में हो सकता है, कोलाइटिस है सिंपल उसमें हो सकता है, या कोलाइड कार्सिनोमा में तो काफी एक्सेसिव म्यूकोइड डिस्चार्ज होता है। इसी तरह से थर्ड जो इम्पोर्टेंट से मुझे लगता है कि ये सिम्टम है जो पेशेंट को काफी बार डॉक्टर के पास लेके आता है। पेन इज द मेन सिम्टम विच ब्रिंग द पेशेंट टू द क्लिनिक, दैट मे बी एनोरेक्टल एरिया और एनी अदर एरिया ऑफ द बॉडी। तो पेन के ऊपर भी इसी तरह की बात है कि हमने देखना है कि नेचर ऑफ पेन कितना है, पेन या ऑनसेट ऑफ पेन क्या है, सडन ऑनसेट है या इंसीडियस ऑनसेट है, या पेन जो है मान लो शार्प कटिंग पेन है, या थ्रोबिंग पेन है। थ्रोबिंग पेन मीन्स कोई
जैसे गहरी सी दर्द हम कहते हैं, उसमें जैसे पस फॉर्मेशन बॉडी के अंदर हो रही है, जैसे इस्टियोरेक्टल एब्सेस होती है, कई बार पेरियनल एब्सेस होती है, तो उसमें थ्रॉबिंग पेन रहती है। शार्प पेन है या प्रिकिंग पेन है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम एनल फिशर में पाई जाती है। और इंटरमिटेंट पेन यूजली मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्रॉनिक एनल फिशर में रहती है, समटाइम्स या फिस्टुला के केसेस में ज्यादा। मान लीजिए फिस्टुला, लेकिन फिस्टुला के पेन का सिम्टम यह है कि जब उसमें पस अकमुलेशन होगी, पस रुक जाएगी फिर फिस्टुला ट्रैक के अंदर, तब उसमें से ब्लड, पस दर्द बढ़ जाएगा। अगर पस डिस्चार्ज हो गया, दैट मे बी मैन्युअली और स्पॉन्टेनियसली, तो पेन विल गो ऑफ। इसी तरह फिस्टुला ट्रैक अनकम्प्लिकेटेड पाइल्स और यूजुअली पेनलेस ही होती है। कॉम्प्लिकेशन में मान लो पाइल्स में अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, या उसमें ज्यादा प्रोलैप्स हो जाता है, थ्रोम्बोसिस होता है, ट्रोंगुलेशन होता है, या कोई ट्रॉमा लोकल हो जाता है, दिस कंडीशन मेक्स द पाइल पेनफुल, तो दर्द हो सकता है। अदरवाइज सामान्य कंडीशन में जो पाइल्स है वो पाइल्स मेनली फिशर, फिस्टुला। इसी तरह सीए रेक्टम पेन के बारे में चर्चा चली, तो पेन सीए रेक्टम इनिशियली इट इज ए पेनलेस कंडीशन, और जब तक पेल्विक फेशिया के अंदर कन्फाइंड है, कोई भी ग्रोथ जब तक पेल्विक फेशिया के अंदर कन्फाइंड है, तब तक उसमें पेन नहीं होगा। लेकिन जब उसका मेटास्टाइज करके सैक्रा बोन कर जाएगी, या कहीं और सैक्रोफेसिया से बाहर निकलेगी, तो ये पेनफुल बन जाती है। एंड रेक्टल पॉलिप अगेन इट इज ए पेनलेस कंडीशन। नेक्स्ट सिम्टम हम इससे बात कर रहे थे कि एबनॉर्मल बाउल हैबिट। एबनॉर्मल बाउल, नॉर्मली पेशेंट पासिस टू वंस और ट्वाइस ए डे। अदरवाइज क्या होता है, कई बार अगर उसमें सडन चेंज होती है, ग्रेजुअली में चेंज बट सडनली चेंज होती है, तो उसमें हम देखते हैं कि काइंड ऑफ चेंज क्या है। मान लीजिए व्यक्ति एक बार जाता है, उसके बाद उसको 5, 6, 7, 8, 10 बार जाना पड़ता है, विद पेन एब्डोमेन की कंप्लेंट लेके आता है, तो डायग्नोसिस डिफरेंट रहता है। क्योंकि उसमें अगर जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोहन डिजीज, इनमें जो डिफिकेशन का टाइमिंग है वो पेशेंट ज्यादा बार अनुभव करता है। इसी तरह से कई बार मान लो स्टूल पास करता है, लेकिन धीरे उसके कॉन्स्टिपेशन है, इंक्रीजिंग कॉन्स्टिपेशन लगातार बढ़ती जाती है। तो मान लो अभी लेग्जेटिव की डोज लेता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद दोबारा उसको लेग्जेटिव की डोज लेनी पड़ती है, इंक्रीजिंग डोज है, तो वो भी अलार्मिंग सिम्टम्स हैं। उसके बारे में हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि मान लो इसी तरह जो सीए के केसेस हैं, पेल्वी रेक्टल जंक्शन है के पास सीए है, रेक्टम के अंदर सीए है, तो उसमें व्यक्ति का ब्लड प्लस म्यूकस प्लस ज्यादा बार स्टूल पास करेगा, मॉर्निंग में बिस्तर से एकदम उठते उसकी इच्छा होगी कि बाहर जाने की। इसी तरह जो एनुलर ग्रोथ है, जो सिग्मोइड कोलोन में अपर पार्ट रेक्टम या सिग्मोइड कोलोन के ऊपर होती हैं, उनमें यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेशेंट है वो कॉन्स्टिपेशन होती है, वो स्टूल पास, वो जो लेग्जेटिव है उसकी डोज बढ़ती रहती है। इसी तरह के जो ग्रोथ्स हैं डिफरेंट टाइप्स की, जो लोअर पार्ट ऑफ ये एनुलर, जब मैं भी बता ही रहा था कि एनुलर जो पेल्वी रेक्टल जंक्शन के ऊपर जो ग्रोथ है, या अपर पार्ट ऑफ द रेक्टम सिग्मोइड कोलोन के ऊपर, वो एनुलर इन नेचर होती है। और जो लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम के ऊपर है, पेल्विस या एनल कैनाल के अपर पार्ट पे समझ लीजिए, वो अल्सरेटिव या प्रोलिफरेटिव ग्रोथ रहती है, इजी टू ब्लीड होती है, वो हाथ ला टच एंड ब्लीड। तो इधर स्लाइड्स के ऊपर मोस्टली चर्चा मैंने बता दिया आप लोगों को। नेक्स्ट सिम्टम इज प्रोलैप्स। ये अभी हमारी प्रश्न परीक्षा की बात चली, अभी प्रश्न में बात चली, उनकी हमने कंफर्मेशन करनी है आगे चल के। प्रोलैप्स में दो किसी की बात है, समथिंग इज कमिंग आउट फ्रॉम द एनल कैनाल ड्यूरिंग डेफिकेशन और विदाउट डेफिकेशन और इन ए सिटिंग पोजीशन को हम प्रोलैप्स कहेंगे। प्रोलैप्स तो हम दो थिंग्स, अगर एक तो रेक्टल प्रोलैप्स है
पाइल मासिस का प्रोलैप्स भी हो सकता है। प्रोलैप्स रेक्टल प्रोलैप्स पार्शियल, अगर कोई भी प्रोलैप्स 3 सेंटीमीटर से अधिक है तो हम उसको कहते हैं कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स है। अगर कम प्रोलैप्स है, इतना है, तो वो पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स, उसी के अनुसार ट्रीटमेंट की जो सिस्टम है वो तय होगा। इसी तरह पॉलिप है, वो बाहर जाता है, बच्चों के से पॉलिप बाहर आ सकता है, प्रोलैप्स रहता है उसका, साथ में ब्लीडिंग भी मिलेगी। या लव पाइल्स के पास मान लो ग्रेड 4 हेमराइड 3 में लॉन्ग सिंडिकेसिस पाइल्स के, या लार्ज एनल पेपिलास कई बार होते हैं, वो भी बाहर प्रोलैप्स करते हैं। उसके पश्चात क्वेश्चन राइज होता है कि जो प्रोलैप्स है वो कैसा है, इस पेशेंट रिड्यूस खुद कर पाता है, अपने आप अंदर चला जाता है, या मैनुअली करना पड़ता है, या नॉन रिड्यूसिबल है। इसका हमने स्टेज करने में हेल्प मिलती है। एक तो पाइल्स की बात करें, हम जो अर्श रो की बात करते हैं, तो अगर अपने आप ही अंदर कुछ भी बाहर नहीं, अपने आप ही अंदर चला जाता है, तो हम इसको कहेंगे कि ग्रेड 2 हेमरोइड्स करेंगे। अगर मैनुअली रिडक्शन है, ग्रेड 3 कहेंगे। कई बार मैनुअली रिड्यूस कर दोबारा बाहर आ जाए अनरिड्यूसिबल है, तो उसे ग्रेड 4 हेमरोइड में रखेंगे। उसी तरह से फिर ट्रीटमेंट का तय होगा। साइज ऑफ प्रोलैप, ड्यूरेशन, और उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ प्रोलैप्स की बात है। इसीलिए कुछ और ये स्लाइड या जैसे एक्सटर्नल ग्रोथ हेमराइड्स के दिखा चुके हैं आपको। जैसे स्लाइड नंबर 3 है जिसमें एनल बार्ड्स, मल्टीपल एनल बार्ड्स हैं इसमें। ये थोड़ी अलग स्लाइड है, पीछे वाली स्लाइड से मैं पहले भी आप लोगों को दिखा। इसी तरह से अदर कंप्लेंट जैसे प्रूराइटिस एन आई है। प्रूराइटिस मीन्स इचिंग इन द एनस पेरियनल एरिया इवन इनसाइड द एनल कैनाल। प्रूराइटिस एन आई पेशेंट इसको भी पाइल्स की तरह ही प्रेजेंट करता है, लेकिन प्रूराइटिस एन आई के बहुत से काजेज हो सकते हैं। काजेज रेक्टम एनल कैनाल से, जैसे एनल कैनाल में जैसे हेमरोइड्स हो सकता है, फिशर में होता है, पॉलिप में होता है, या लार्ज हेमरोइडल मास है उनसे म्यूकोइड डिस्चार्ज हो सकता है। फीमेल केसेस में वेजाइनल डिस्चार्ज है, नहीं, या कोई फंगल इन्फेक्शन है, कोई स्किन डिजीज है, या कोई पैरासाइट्स है, या पुअर हाइजीन है। कई बार सिस्टेमिक डिजीज जैसे डायबिटिक है या रीनल काजेज, ये भी हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ और कंप्लेंट पेश बताया, जैसे लॉस ऑफ वेट है, वेरियस टाइप ऑफ वेट लॉस है, जाहिर है इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी आपको वेट लॉस में कोई डाइजेशन नहीं हो पाता, या सीए रेक्टम कार्सिनोमा रेक्टम, उन केसेस में आपको वेट लॉस मिलेगा। इसी तरह से एब्डोमिनल कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, फिशर मिलता है। इसी तरह से छोटे छोटे कंप्लेंट्स हैं जो एनोरेक्टल के एसोसिएटेड कंप्लेंट्स पेशेंट बताता है। और कई बार इसमें कुछ फैमिली हिस्ट्री जैसे पॉलीपोसिस की फैमिली हिस्ट्री मिलती है। इसी तरह से अब नेक्स्ट स्टेप पे, जैसे अब प्रश्न परीक्षा हो गई, उसके बाद हमारी दो परीक्षाएं, स्पर्श और दर्शन और स्पर्शन परीक्षा। तो उसके लिए सर्वप्रथम ये जरूरी एग्जामिनेशन करेंगे हम पेशेंट की पोजीशंस। जब पेशेंट हमारे पास आता है, क्योंकि कोई भी एनोरेक्टल एग्जामिनेशन बिना फिजिकल एग्जामिनेशन के कंप्लीट नहीं माना जा सकता। तो इसीलिए डिफरेंट पोजीशन, जैसे लेफ्ट लेटरल, ये अपने सेटअप के अनुसार या पेशेंट की चीज के अनुसार या अपनी संस्था के, लेकिन जो बुक्स में वर्णित है, जिनको प्रैक्टिकली मोस्ट ज्यादा कॉमनली हम यूज कर रहे हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन है, डॉर्सल है, नी एल्बो है, राइट लेटरल है, या लिथोटोमी पोजीशंस है। अब प्रश्न आगे इंस्पेक्शन का। इंस्पेक्शन है फर्स्ट स्टेप पे आपके, अगर जैसे फर्स्ट स्टेप में जब सर पर जरूरी नहीं पाते पेशेंट को स्पर्श करना, इंस्पेक्शन जो दर्शन पर से उससे भी हमें काफी कुछ हेल्प मिलती है। ऑन एग्जामिनेशन में अगर इंस्पेक्शन में पहले स्टेप में क्या करेंगे, हमें क्या क्या चीजें नजर आ सकती हैं। सिंपल बात है, कोई एक्सटर्नल ग्रोथ है पाइल, वो नजर आ जाएगी। कोई सेंटिनल पाइल है फिशर के मान लो 6-12 o'clock पोजिशन, वो आपको नजर आ जाएगी। पाइलोनाइडल साइनस नजर आएगा, उसके लिए पोजिशन आपको दूसरी यानी बढ़ जाकर एनल बार से बता रहा हूँ। तो एनल कैनाल का सीए अगर लोअर पार्ट पे यार बाहर को ग्रो कर, वो आपको नजर आ जाएगा। पैर एब्सेस है या इस्टियोरेक्टल एब्सेस है लार्ज साइज की, वो नजर आई। कॉन्डाइलोमा नजर आ जाएगा। प्रूराइटिस नजर आ रही है, या ग्रेड 4 पाइल्स भी हमें इंस्पेक्शन से पता लग जाए। मान लो प्रोलैप्स पाइल्स तो हमें वैसे नजर आ जाएगा ग्रेड 4। और वेरी रेयरली जो है वो पॉलिप भी कभी कभी पेशेंट आते हैं बच्चे लेके कि जी बाहर ही है, गुदा का मांस बाहर निकला हुआ है,
को उसका नहीं पता। तो अब नेक्स्ट एग्जामिनेशन आता है पैल्पेशन का। पैल्पेशन जब इंस्पेक्शन पूरा हो गया कि किस साइड पे क्या हो रहा है, कहीं पर कोई स्वेलिंग है, मान लीजिए जैसे ये जो केस स्लाइड सामने लगाई है, इसमें पेरिएनल एब्सेस इसमें है, फिस्टुलस पहले भी ऑपरेटेड केस है, इसमें दोबारा रेकरेंस हो करके कि पैर एब्सेस बनी हुई है, तो उसमें दोनों एडिमा आ जाएगा पहले, और उसको जब हील करते हैं तो उसमें इंड्यूरेशन मिलेगी, टेंडरनेस मिलेगी, एरिया में काफी हार्डनेस होगी, काफी पेनफुल होगा, और इवन कि हम उससे फिस्टुलर ट्रैक को भी ट्रेस कर सकते हैं कि एक्सटर्नल ओपनिंग से इंटरनल ओपनिंग तक जो कॉर्ड टाइप के जो स्ट्रक्चर है उसमें कर लेते हैं। और इसी अंदर पैल्पेशन का ही जो पार्ट है, स्पर्श परीक्षा, इसी के अंतर्गत देखेंगे डिजिटल एग्जामिनेशन, जिसको हम पीआर एग्जामिनेशन बोलते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। और किसी भी रेक्टल एग्जाम से परहैप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। इसमें क्या करें, पेशेंट को सबसे पहले उसको प्रॉपर पोजीशन, जैसे लिथोटमी पोजीशन या लेफ्ट लेटरल जो सूटेबल पोजीशंस है, उसमें मोस्ट ऑफ मतलब हम तो ज्यादातर लिथोटमी पोजीशन का यूज करते, उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन ज्यादा इजीली मिल जाती है। द पेशेंट शुड बी टोल्ड अबाउट द प्रोसीजर, फिर ऑयल या जेली से फिर लुब्रिकेट करके पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन में लटा करके अब एनल कैनाल, जब भी अब डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें थोड़ा सा इमेजिनेशन करना कि एनाटॉमिकली एनल कैनाल रेक्टम की और उसके जो पेल्विक एरिया के आसपास के जो स्ट्रक्चर है, अगर हम उनको अपने जहन में रखेंगे तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। इस स्लाइड में डायग्राम में थोड़ा बताया गया। तो एनल कैनाल में जब भी हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, यूजुअली एक तो बिल्कुल सीधी उंगली नहीं डालते हैं, हमारी उंगली की जो थोड़ी स्लांटिंग पोजीशन में टिप ऑफ द फिंगर शुड बी टुवर्ड्स द अम्बलाइकस। और सर्वप्रथम शुरू कर दे, जैसे हम स्टार्ट करते हैं वहीं से देख लेंगे कि सर्वप्रथम पता चलता है कि स्फिंक्टर टोन, पेशेंट मान लो अगर स्फिंक्टर लूज है तो भी इजीली फिंगर अंदर चली जाएगी, अगर बहुत टाइट है तो पेशेंट को दर्द होगा, फिशर का केस नहीं जाने देगा, अंदर बहुत पेन रहेगी। तो स्फिंक्टर टोन देखेंगे या उसको पेन है नहीं, या उसके पश्चात हम देखेंगे टेंडरनेस। इनिशियली जैसे हम फिंगर एंटर करते हैं तो शुरू में हमें एक ग्रूव मिले, इंटरनल और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के बीच में एक ग्रूव जैसा फील होगा, वो जंक्शन है इंटरनल और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर का। और इसकी डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस ये रहती है कि कोई भी हेमोरॉइडल मास अगर इसके अंदर है उसको हम इंटरनल पाइल्स में रखते हैं, और इस ग्रूव से बाहर की तरफ को जो हेमरॉइड्स हैं उनको हम एक्सटर्नल हेमरॉइडल की श्रेणी में रखते हैं। इसी तरह से, और जैसे हम आगे फिंगर लेके जाते हैं, अगर कोई इसमें कोई डिप है, मान लो कोई फिस्टुलस ओपनिंग, इंटरनल फिस्टुलस ओपनिंग कैन बी ट्रेस्ड, अगर तो उसमें कोई हार्ड इनड्यूरेटेड एरिया हमें मिलेगा, हार्ड अनड्यूरेटेड एरिया होगा, या उसमें उभार हो सकता, डिंपल हो सकता है, उसमें गड्ढा भी हो सकता है, डिंपल हो सकता है, और आसपास इंड्यूरेशन पेन है, और बाहर की अगर हमारी हिस्ट्री भी मेल खाती है प्रश्न परीक्षा से भी, तो फिस्टुलस की इंटरनल ओपनिंग हो सकती है। सेकेंड, हम उसके आगे चलेंगे तो एनुअल रेक्टल रिंग के ऊपर पहुंचेंगे। एनुअल रेक्टल रिंग पोस्टीरियरली ज्यादा प्रोमिनेंटली हमें फील होता है, उसी तरह से उसके बाद लेटरली, दोनों लेटरल साइड पोजीशन पे फील होगा सीलिंग लाइक स्ट्रक्चर में, उसी पश्चात उसके पश्चात लेस फील होगा हमें एंटीरियरली। तो ऐसे हमने टेंडरनेस, थिकनेस या कोई अल्सर इन जगहों पे नहीं है, ग्रोथ है, यानी डीप स्वेलिंग, डिस्चार्ज। और उसके पश्चात हम जैसे रेक्टम में पहुंचते हैं, तो डिजिटल एग्जामिनेशन जब हम रेक्टम पहुंचते हैं तो रेक्टल एग्जामिनेशन में पोस्टीरियर हॉलो ऑफ द सैक्रम, जैसे रेक्टल के ऊपर हमारी फिंगर जाती है तो पोस्टीरियर जो सैक्रल कर्वेचर जो होकर जाती है, तो म्यूकोजा ऑफ द रेक्टम उसको फील करते हैं, एज हाई एज पॉसिबल हम उस फिंगर को ले जा सकते हैं और जाकर के देखें। अब डिजिटल एग्जामिनेशन ये तो ऐसे लग, अब प्रश्न हुआ कि हम तीन चार चीजें देखेंगे इसमें। जब हम डिजिटल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें इसमें मुख्यतः तीन भागों में हम इसको बांट सकते हैं। फर्स्ट इज
in the lumen, second in the wall of the anal canal or rectum, and third is outside the wall. फर्स्ट जो ल्यूमन के बीच में तो बहुत ज्यादा हम लोगों को इतना ल्यूमन के बीच में या तो अनीमा दे रखा है प्रॉपर्टी का, अदरवाइज कई बार फीसिस हो सकती है, या रेयर केस में कहीं कोई इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का केसेस है तो उसको बैलूनिंग ऑफ इंटेस्टाइन वहां से मिल सकती है। लेकिन और ज्यादा हमें जो उसका ल्यूमन है वहां इतना नहीं मिलता, ग्रोथ है उसका वॉल के एग्जामिनेशन। तो जो वॉल है हमारी एनल कैनाल की वॉल है उसके बारे में जैसे ग्रुप इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल हेमरोइड प्लेक्सस ग्रुप मैंने बात कर ली। पोस्टीरियर रिंग, नेक्स्ट स्लाइड। उसके पश्चात जैसे हम रेक्टम में एनल कैनाल के ऊपर पोस्टीरियरली बात, मोस्ट ऑफ द जो डीप की हम बात कर रहे थे वो पोस्टीरियरली हमें मिलेगा, साइड्स में रेयर केस में हमें मिलता है। इसे डिजिटल एग्जामिनेशन में रेक्टम में जाएंगे तो पोस्टीरियर ऑफ द म्यूकोजा फील होगा, उसके पश्चात स्मूथ उसके फोल्ड होंगे। अगर उसमें कोई मान लो ऐसी कोई ग्रोथ है, कोई अल्सर है, कोई उभार है, इंड्यूरेशन है, तो वो आपको हील करने, क्योंकि ये धीरे धीरे एकदम से नहीं हो पाए, काफी इसके लिए अनुभव चाहिए, कंटिन्यूअस सतत अभ्यास जो है वो जरूरी है। तो इसीलिए रेक्टम के मान लीजिए कि रेक्टल कोई पॉलिप है या मोस्टली पेडंकलेटेड कोई ग्रोथ है, या तो उसके ऊपर हमारा तरीका यह है कि हम फिंगर को काफी ऊपर लेके जाते हैं, पेडंकलेटेड ग्रोथ के फिंगर एज हाई एज उसके अपवर्ड जो लिमिट है उसकी मोस्ट वहां जाके फिर उसके लास्ट लिमिट से फिंगर को कर्व करते हैं, मोड़ के उसको। जो पॉलिप अगर मान लो कि सॉफ्ट ग्रोथ है, जो पॉलिप है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सॉफ्ट ग्रोथ होगी, तो उसको हम बाहर भी रेक्टम से काफी बार बाहर भी पुल कर सके कला से, वहां देख सकते हैं, उसमें डाउट है। सेकेंड, इसमें जो रेक्टल स्ट्रक्चर मान लो कोई है उसका हमें पता लगा सकते हैं। रेक्टल स्ट्रक्चर है, कोई टाइटनेस रेक्टम में तो नहीं है, कॉज उसका डिफरेंट काजेज हो सकते हैं, ट्रॉमा हो सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव हिस्ट्री हो सकती है, या समटाइम इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। इसी तरह से सीए है, बड़ी इंपॉर्टेंट जो इसमें डायग्नोसिस रहता है, दैट इज ऑफ सीए रेक्टम। जो मोस्ट ऑफ द टाइम सीए रेक्टम के लोअर पार्ट ऑफ सीए रेक्टम, जो लोअर से पार्ट है रेक्टम का एम्पुला का, उसमें लगभग प्रोलिफरेटिव और अल्सरेटिव टाइप की ग्रोथ अक्सर होती हैं, पेप्लीफेरस अल्सरेटिव। और अपर पार्ट में जो 25% अपर पार्ट ऑफ रेक्टम में या लोअर पार्ट ऑफ एनल सॉरी सिग्मोइड कोलोन में रहती हैं। और ये एग्जामिनेशन इतना महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, कि अगर थोड़ा सा अनुभव है तो 90% ऑफ द कैंसर सीए ऑफ द रेक्टम कैन बी डायग्नोज विद पीआर एग्जामिनेशन। उसे हम देखेंगे कि उसका कंसिस्टेंसी देखेंगे, उसकी फिक्सिटी देखेंगे कि क्या ट्यूमर जो है, जो मान लो जैसे पॉलीपेपेडंगुलेटेड ग्रोथ है वो तो अलग फील होगी, सॉफ्ट होगा, लेकिन जो सीए होगा उसका एक तो हार्डनेस उसमें होगी, स्टोनी हार्ड भी होते हैं कई बार, या टच करने से ब्लीड करते हैं, या इंड्यूरेट उसके मार्जिन है वो इंड्यूरेटेड, उसके मार्जिन एवर्टेड मिलेंगे, इंड्यूरेटेड एरिया मिलेगा नीचे। और जब तक वो अब ग्रोथ फेशिया प्रोप्रिया के अंदर है, रेक्टल फेशिया के बीच में है, पेल्विक फेशिया के बीच में, तब तक वो पेनलेस है या उसका मेडिसिन है। लेकिन जैसे ही फेशिया से बाहर जाती है तो उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो मेटास्टेसिस हो गया, तो वहां पर वो पेनफुल हो जाएगी कंडीशन। तो ये सारी छोटी छोटी बातें अगर पेशेंट हमारे पास आता है, हमारे जहन में है, तो उसको देखने में हेल्प मिलती है, डायग्नोसिस हमारा अच्छा हो जाए। इसी तरह ये पहले भी देखा जाए, प्रोलैप्स का केस था आफ्टर रिडक्शन, रेड रिडक्शन ये था आफ्टर, इसको सिंपल एज ज्यादा थी इस कारण सिंपल हीरिश ऑपरेशन इसका किया गया था। तो ये इसकी कोई 6 महीने बाद की फोटो है जो आफ्टर वाली है। और थर्ड पार्ट रहता है कि डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन का
आउटसाइड द वॉल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट, लेकिन थोड़ा डायग्नोस्टिक वैल्यू इसकी ज्यादा है। डायग्नोस्टिक वैल्यू इसकी ज्यादा है, तो इसीलिए इसके लिए भी हमें वही जरूरी है कि हमें एनाटॉमिकल थोड़ा सा ध्यान चाहिए कि एंटीरियरली कौन कौन से स्ट्रक्चर, जैसे हम पीआर एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो एंटीरियरली जब ये करते हैं तो सबसे ज्यादा जैसे प्रोस्टेट का हम पता लगा सकते हैं। प्रोस्टेट नॉर्मली बाई लोब्ड और स्मूथ म्यूकोजा उसके ऊपर इजीली न्यूब करता है, लेकिन जैसे एनलार्जमेंट हो जाती है तो उसकी जो साइज बढ़ जाता है तो उसमें हमें मिलते हैं। उसी के कारण साइड में अगर देखेंगे तो सेमिनल वेसिकल्स, इवन का समटाइम बेस ऑफ ब्लैडर रहता है। इसी तरह से फीमेल की बात करें या मेल में एक और पॉइंट जो रह गया, दैट इज रेक्टोबेसाइकल पाउच को हम इसमें फील कर सकते हैं। इन फीमेल के केसेस में सर्विक्स है, वेजाइना का अपर पार्ट है, सर्विक्स है, पाउच ऑफ डगलस है, या यूट्रस, इनको हम एंटीरियरली किल कर सकते हैं। और डायग्नोसिस वाले है कि समटाइम्स प्रेजेंस ऑफ पल्स है, या कोई ब्लड है, मेलिना डिपॉजिट है, या उसमें सही बड़ा हो तो पाउच ऑफ डगलस है, वहां से हमें ये डायग्नोसिस हल मिलती है। इसी तरह से लेटरली बात करें, डिजिटल एग्जामिनेशन का, तो लेटरली तो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो बहुत हिस्ट्री रेक्टल फोसा यहाँ पाए जाते हैं। राइट साइड में देखें तो पेल्विक अपेंडिक्स है, तो राइट साइड में पेट में हालांकि उसकी दर्द नहीं मिलेगी, लेकिन उसके लिए जो पीआर एग्जामिनेशन उसकी सहायता से पेल्विक अपेंडिसाइटिस का डायग्नोस किया जा सकता है। इन फीमेल केसेस में फेलोपियन ट्यूब्स है, ओवरी है, और इवन अगर ज्यादा अनुभव किसी का इस मामले में है तो वो ओवेरियन सिस्ट है, उनका कर सकता है। और सम टाइम अगर कुछ समय की एक्टोपिक प्रेगनेंसी, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और चेक करते हैं थोड़े, तो वो भी इससे फील की जा सकती है। या इंटरनेलियल आर्टरी है, और लोअर पार्ट ऑफ यूरेटर का भी इसमें किया जा सकता है। इसी तरह से पोस्टीरियरली अगर बात करें तो एनल कैनाल से, उसके ऊपर हमारी चर्चा पहले भी होगी कि स्फिंक्टर टोन देखेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनल ओपनिंग ऑफ फिशर मिले, सॉरी फिस्टुला, इंटरनल ओपनिंग ऑफ फिस्टुला, उसका डिप हमें फील हो सकता है, उसकी इंड्यूरेशन मिलेगी, टेंडरनेस मिलेगी। और अगर रेक्टम के बीच में चल जाते हैं तो हमें हॉल ऑफ सैक्रम है, कॉकिक्स में फील कर सके, कॉक्सी डायनिया केस में कॉकिक्स में जो टेल बोन है उसके ऊपर जब कई बार पेशेंट पेन की कंप्लेंट लेके आता है तो पीआर करके अंदर से भी इसको टेंडरनेस उसकी फील की जा सकती है। इसी तरह से पोस्टल डर्मोइड या सैक्रोकॉक्सियल टीरेटोमा, ये डिफरेंट कंडीशंस हैं जिनको हम इसी तरह से और देख ले कि बाय मैनुअल एग्जामिनेशन, मतलब कि फिंगर इनसाइड द एनल कैनाल और रेक्टम के बीच में है, तो एक लेफ्ट हैंड शुड बी ऑन द एब्डोमेन, लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन को प्रेशर करते हैं, दबा के देखते हैं, उससे भी किया जा सकता है। या इनके इलियक लिम्फ नोड को भी फील किया जा सकता है। और इसके अलावा ये दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न परीक्षा, ये तो मुख्य तौर पर इतनी परीक्षा है। इसके बाद अब हिस्ट्री हो गई, पेशेंट का एग्जामिनेशन हो गया, इसका विशेष इन्वेस्टिगेशंस हम क्या स्पेशल क्या क्या कर सकते हैं। वैसे प्रोक्टोस्कोपी, जैसे मैं बात की कि पाइल्स, अगर कॉम्प्लिकेटेड पाइल्स है वो तो हम फील कर लेंगे, लेकिन मान लीजिए ग्रेड 1 ग्रेड 2 हेमरॉइड्स वैसे अगर डायग्नोज नहीं होता तो प्रोक्टोस्कोपी इज अ वेरी यूजफुल, वेरी कॉमन इंस्ट्रूमेंट, जिससे हम पाइल मासिस का पता इजीली लगा सकते हैं। पर उसके लिए भी वो जिसी तरफ तय के बिल्कुल डायरेक्ट फिंगर नहीं डालते, स्लाइटली अम्बलाइकस की तरफ उसकी पोजीशंस होनी चाहिए प्रोक्टोस्कोप की। इसी तरह से हायर जगह देखना, हमारे पास सिग्मोइडोस्कोपी है, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, कोलोनोस्कोपी है, इजीली इन सारी चीजों को वैसे। लेकिन बेस्ट ये है कि क्लिनिकल सेंस, इस सारे हिस्ट्री टेकिंग, दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न परीक्षा का मूल उद्देश्य ये है कि हमारे जो नए होनहार विद्यार्थी हैं उनका एक क्लिनिकल सेंस, इन्वेस्टिगेशन तो हेल्पिंग टूल है ही, लेकिन एक
क्लिनिकल सेंस में कैसे अच्छी हो, ताकि हम एक अच्छी हिस्ट्री से, अच्छे उसका एग्जामिनेशन से कम एक प्रॉपर डायग्नोसिस है बना पाए, और उसी के आधार पर इन्वेस्टिगेशन, तो ऐसे हम ऐसे पेशेंट का डायग्नोज ही कर पाएंगे, उसका पैसा भी बता पाएंगे। तो सिग्मोइडोस्कोपी है, इसमें सिग्मोइड कोलोन की कोई पैथोलॉजी होगी, कोलोनोस्कोपी पूरे होल कोलोन का, या कोई एक्सरे चेस्ट, एक्सरे एब्डोमेन, दोनों ही हम करवा सकते हैं। जो सीए के केसेस है मेटास्टेसिस का है, मान लो कि कोई रेक्टम का जो कैंसर है, कई बार लंग्स में उसका मेटास्टेसिस हो जाता है, इसी तरह एब्डोमिनल लिम्फ नोड्स का सीटी स्कैन, क्रॉस एमआरआई, फिस्टोग्राफी, अगेन फिस्टुला केस में वेरी यूजफुल इन्वेस्टिगेशंस है। इसी तरह हिस्टोग्राम है सिंपल, या इवन यूएसजी से भी एब्सेस का साइज, उसको या कितना साइज है, या लिम्फ नोड्स कितने बड़े, उनको देखा जा सकता है। इसी तरह से डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ये जो हमने बातें की हैं उसी को ले दे करके कंपाइल करके इकट्ठा बताने की कोशिश की है कि सिम्टम्स जैसे पेन है, तो पेन है मोस्ट ऑफ द टाइम हेमरॉइड्स के केसेस में, मान लो अगर पेन अकेला हम कुछ भी ना करें, अगर पेन की कंप्लेंट लेके आता है, तो हमारे मन में हेमरॉइड नहीं आना चाहिए। फर्स्ट लक्षण शुड बी एनल फिशर या कांस्टेंट। वही पेन की बात हमने कर ली कि उसकी जो चर्चा है वो अलग से कैसे है, सॉरी फोन बीच में बज गया था, पेन, इसीलिए एनल फिशर है या फिस्टुला में तो पेन की हमने चर्चा कर ली, इसी के अकॉर्डिंग हमारा डायग्नोस है। जो पॉलिप में भी पेन नहीं होती, इसी तरह ब्लीडिंग है, तो ब्लीडिंग हेमरॉइड मेन सिम्टम हो सकता है, फिशर में थोड़ी बहुत अकेजनली, इसी तरह फिस्टुला एनो में ब्लड प्लस म्यूकस अकेला ब्लीडिंग नहीं होगी, पॉलिप में ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग पाइल्स में मिलेगी या पॉलिप में मिलेगी। इसी तरह डिस्चार्ज है, ओनली ब्लीडिंग एब्सेंट, इसी तरह चार्ट में आप देख सकते। प्रोलैप्स में भी इसी तरह ग्रेड 3 ग्रेड 4 हेमरॉइड्स हैं, उनमें प्रोलैप्स मिल सकता है। या एनल फिशर में अगर क्रॉनिक स्टेज हो गई या टैग बन गया है, सेंटिनल पाइल्स इसको कहते हैं, जो उस पोजीशंस पे, तो आपको वो बाहर मिलेगा। फिस्टुला एनो में कोई प्रोलैप्स वाली बात नहीं है। इसी तरह पॉलिप ड्यूरिंग डिफिकेशन प्रेजेंट होता है रेयरली, कई बार कुछ बच्चे लेके अगर पेरेंट्स उसी टाइम लेके थे तो हो सकता है। प्रूराइटिस में जो प्रोडेक्ट सिम्टम्स हैं और लॉन्ग स्टैंडिंग पाइल्स है, उसमें म्यूकोइड डिस्चार्ज जो बताया गया था, जब प्रोराइटिस में बात कर रहे थे कि म्यूकोइड डिस्चार्ज है वो इचिंग कर सकता है एरिया में, पुराने फिशर में भी रह सकती है। फिस्टुला में अक्सर प्रोराइटिस कम मिलता है, या मान लीजिए कि पुराना क्रॉनिक फिस्टुला का केस है, उसमें थोड़ा बहुत रिसाव रहता है, पर्सनल हाइजीन अच्छी नहीं है, तो पॉलिप पॉलिप के केसों में नहीं मिल पाता। इसीलिए हम कुछ थोड़ा सा डायग्रामेटिकली एक आधी और उसको बताने प्रयास करेंगे कि ये ऊपर वाली दो पिक्चर हेमरॉइड्स की है, ये ग्रेड 4 प्रोलैप्स्ड आप कह सकते हैं इसको, कुछ हद तक थ्रोम्बोज्ड हेमरॉइड्स है। और इसके नीचे जो ग्रीन शीट से इसके ये दिखाया जा रहा है, जैसे ये दिस ए केस बेसिकली ये सीए का केस है, प्रोलिफरेटिव ग्रोथ है। क्लिनिकली हिस्ट्री से हम लोगों ने, हमारे पास आया था कोई कोई 1 लाख करीब, कोई 1 साल पहले का केस है, आए थे, लेकिन हमने भी थोड़ा सा इनिशियली तो मिसडाइग्नोज रहा केस के, हमने भी इसको लार्ज साइज पॉलिप या करके देख लिया, लेकिन जब एनास्थीसिया ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए और एनास्थीसिया दिया, जब उसके पैनल के अंदर डायलेटेशन की, तो उसको बाहर आकर के, तो इसका पिक्चर आप देखेंगे दोनों में काफी डिफरेंस, प्रोलैप्स हेमरॉइड बिल्कुल अलग अलग नजर है, लेकिन इसका अलग ही है। देन वी रेफर द केस टू द हायर सेंटर। और इसके साथ वाले ये जो दिस वन जो पिक्चर है तो ये पिक्चर हिमेटोमा है, बर्स्ट हिमेटोमा, पेरियानल हिमेटोमा है नियरली 7 o'clock पोजीशन पे, लेकिन बर्स्ट बाहर निकल रहा है रप्चर होके अपने आप ही। कई बार इस पोजीशन में भी हिमेटोमा आते हैं। इसी तरह से ये कुछ और स्लाइड्स हैं, क्योंकि इंडिविजुअली एक एक डिजीज पे चर्चा करने तो बहुत लंबा समय चाहिए, पर जस्ट मैं एक जो हमने चर्चा की, एग्जामिनेशन किया, उसके जो डिफरेंट व्यूज ऐसे हो सकते, क्योंकि 60 में फोटो आई तो समझने में इजी रहता है। ये पाइलोनाइडल साइनस था, कहीं बार बार रेकरेंस हो रही थी, जो कहीं रिपीट किया, लेकिन
इसमें जो बात इसमें मैं शो करना चाह रहा हूँ वो दिस वन ये है कि यहाँ पर इसकी रेकरेंस होकर के ये फिस्टुला टाइप में चला गया था। इसका जो था ये फिस्टुलस टैक, तो वहां से चलता चलता है फिस्टुला में कन्वर्ट हो गया था। तो आगे हमने तो उसको फिस्टुला की लाइन पे आगे ट्रीट करके कुछ पार्ट को किया। ये ऊपर फिस्टुला की प्रोब डेली प्रोबिंग है। इसी तरह से राइट वन साइड दिस वन इज मल्टीपल एक्यूट फिशर है, एक्यूट एनल फिशर है मल्टीपल। इसी तरह से ये एनल वार्ड्स है। ये हेमरॉइड्स के बारे में ही है। तो लगता है इंडिविजुअल हेमरॉइड्स के ऊपर इससे पहले भी काफी 2-3 लेक्चर आदरणीय मनोरंजन साहू सर और प्रोफेसर रमन सिंह सर कर चुके हैं जल्दी। तो ये जस्ट एक दिखाने के लिए डिफरेंट स्लाइड्स हैं कि आप लोग, तो लगता है हेमरॉइड्स की मैं ज्यादा उसमें ना जाता हुआ, इसके ऊपर काफी चर्चाएं हो चुकी हैं पहले। तो आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट पर त्रिविध परीक्षा रोग का विनिश्चय उपरांत चिकित्सा, सभी रोगों की चिकित्सा भिन्न भिन्न प्रकार से रोग या रोग अवस्था मुख्य था। और चलो ये हेमरॉइड्स की स्लाइड है। चलो मैं अब ये जैसे भगंदर का है, ये हमारे पास भगंदर की एक्सटर्नल ओपनिंग है। कई बार सिंपल वॉइल की तरह लगता है, लेकिन जब देखेंगे तो काफी डीप इसमें ट्रैक रहता है। ये अगेन दूसरा केस भगंदर का है। इसी तरह ये प्रोबिंग करते हुए भगंदर का बताया गया, जिसमें जेंशियन वॉलेट डाई डाल करके, ये भी एक यूजफुल मेथड है कि अब डाई डाल करके करने में हेल्प रहता है। ये एक क्षार सूत्र इसमें चिकित्सा है। और ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट है। ये पाइलोनाइडल साइनस है। ये था। इसके बाद आफ्टर क्षार सूत्र कर्मा का इसके कोटिंग है। ये भी जस्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस के, ये फिस्टुला का, क्योंकि मल्टीपल केस देखने का यही रहता है कि जो नए लोग जो इस विधा से नहीं, उनको काफी आसानी इसमें रह जाएगी। दिस वन इज एनल फिशर है, इधर फिस्टुला के 2 केसेस हैं। इधर एंडोडर्मा इन्फ्लेम्ड एक्सटर्नल थ्रू हेमरॉइड्स है। इसी तरह ये हिमेटोमा ही देखिए, ये बर्स्ट हो गया दोनों तरफ का, या अल्सरेटेड हेमरॉइड के लिए एक्सटर्नल हेमरॉइड, या पेरियनल हिमेटोमा जो अपने आप रप्चर हो रहा है। इसी तरह ये एक और एग्जांपल मल्टीपल एनल वार्ड्स, जैसे मेल कहते हैं, ये इसी तरह के हम एनल वार्ड्स भी पाए जाते हैं काफी। एनल चुला है। और इस सारी प्रेजेंटेशन टेक मैसेज, इस सारी प्रेजेंटेशन का मूल उद्देश्य, हिस्ट्री इज important in all cases. Physical examination is must. Without physical examination, we can't make proper diagnosis. Without digital rectal examination, anal examination is incomplete. Always stick to the basic principle. और थैंक यू। इसी के साथ धन्यवाद आज की प्रेजेंटेशन के लिए। मैं चाहूँगा इसके बारे में कोई भी प्रश्न जितना कर मैंने प्रयास किया सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में जो बता पाए। बाकी मैनेजमेंट पार्ट इंडिविजुअली एक एक डिजीज के ऊपर अलग अलग रहता है, इसीलिए मैंने ये बेसिक्स के ऊपर ही इस प्रेजेंटेशन को रखने की कोशिश की है। और उसके प्रैक्टिकली जो भी हमारे पास कुछ फोटोग्राफ हम कलेक्ट कर पाए थे, कैसे काफ़ी होते हैं लेकिन कई बार कलेक्ट कई कर नहीं भी पाते, लेकिन जिससे जितना कर अपने माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से आप लोगों को बता पाए, सबका रेबी का भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और सभी विद्यार्थियों से सेशन ओपन है, कोई भी इसके बारे में कोई प्रश्न, कोई क्वेरी, एनीथिंग, वेलकम। धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद नागेंद्र पाल जी, आपने बहुत जी। सुंदर ढंग से जो है इस कोई लोगों का वर्णन किया। बहुत छात्र आपसे प्रेरणा ले रहे हैं और बहुत ही
आपका व्याख्यान जो है प्रेरणादायक रहा। बहुत बहुत बधाई राष्ट्रीय विद्यापीठ को, आपको, आपके अनुभव और तपस्या का फल हम लोगों को मिल रहा है। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी, नमस्कार। आप सब गुरुजनों का सानिध्य और आशीर्वाद है, जिसके कारण थोड़ा बहुत जितना भी एक अंश मात्र जो ज्ञान है उसको कर पाते हैं। बहुत शुक्रिया त्रिपाठी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो जी। एनल प्रोलैप्स में थ्रीसिस ऑपरेशन है, एक बार थोड़ा सा समझाएंगे सर कैसे करते हैं? क्या? अच्छा, थीरेस ऑपरेशन। हाँ सर। हाँ, यूजुअली थीरेस ऑपरेशन जो हम करते हैं उसको अंडर लोकल एनेस्थीसिया ही बढ़िया हो जाता है। उसको वो तो चलो बेसिक तो वही है कि प्रॉपर क्लीनिंग करके हम एक 6 o'clock पे और एक 12 o'clock पे स्किन के पास हल्का इंसिजन देते हैं छोटा। वहां से आपने एक, या तो पेशेंट को निर्भर करता है कि कितना बड़ा है वो देखे, वो तो अपना अपना अनुभव है। वहां से एक फाइन आर्टरी डाल सकते हैं या प्रोब, वो ये डालने हमने हल्का लोकल दिया, लगभग कोई 1 सेंटीमीटर तक का छोटा, जितना छोटे से आप कर पाएंगे उतना बेहतर है। यानी एनल वर्ज से लगभग थोड़ा सा बाहर रखेंगे आप, तो कम से कम आधा सेंटीमीटर तो बाहर हो, एक आधा सेंटीमीटर। वहां पर इंसिजन दे करके यूजुअली एक तरफ से आपने, मान लीजिए प्रोब है या कोई फाइन अच्छा अगर आपके पास कर्व्ड आर्टरी है वो आप डाल सकते हैं। उसमें से थ्रेड डालिए। मान लीजिए हमने उसमें, मैं जो यूज करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोलीन थ्रेड का यूज करता हूँ, 1 नंबर 2 नंबर प्रोलीन थ्रेड। उसमें से क्रॉस कर लिया, फिर क्योंकि पूरा सर्कल एक बार में नहीं लिया जा सकता, तो मान लो 12 o'clock से शुरू किया तो मोस्ट ऑफ द 12 o'clock को हम क्लोज करते हैं ज्यादातर, क्योंकि 6 पे फिशर वगैरह का चांसेस ज्यादा रहता है बनने का बाद में। तो 6 o'clock पे उसको निकाल लेते हैं, और 6 o'clock पे उसको निकाल करके फिर दोबारा 6 से 12 को लेके जाते हैं, और 12 o'clock को उसको टाई कर देते हैं, और दोनों जो पोजीशन उसमें एक दो स्यूचर लगाकर उसको बंद कर देते हैं। उसमें एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग रहती है 5-6 दिन तक, जो भी एक स्यूचर का रहता है 1 हफ्ते तक। उसमें कोशिश करते हैं कि गीला ना हो, मिनिमम पानी सेंटर में हम ओपन ही रख देते हैं, तो ये करते हैं। उसके बाद बीच में हम काशीश आदि तेल की और प्लस मिक्स करके शीर वाला तेल और काशीश आदि तेल, इनकी मात्रा बस यूज में देते रहते हैं। वूंड की क्लीनिंग उसकी रहती है। उसके पश्चात तो इनके काफी कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स में भी रिजल्ट काफी देखे गए हैं। अभी तक कोई रेकरेंस, जैसे ये पेशेंट अभी भी सर्वाइवल है, मतलब 2 साल पहले हम लोगों ने ये किया था। तो और भी केस बार, पर इसकी बात करें जो फोटो आप लोगों को दिखाई, तो अभी भी उसकी रेकरेंस है नहीं, ठीक है। दो केस तो इस तरह करते हैं। बाकी चलो नेक्स्ट टाइम अगर कहीं मौके मिला तो जो लाइव छोटे वीडियोस अगर इसमें प्ले करने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट टाइम, अगर इसको को मैनेजमेंट पार्ट पे चर्चा होती है तो। डॉक्टर साहब धन्यवाद सर। सर चलिए। वो थ्रेड को अपन कितने दिन बाद निकाल लेंगे? फाइब्रोसिस कितने दिन में हो जाता है? यूजुअली मतलब वैसे तो हम डॉक्टर साहब, वैसे तो दुख में 6 मंथ तक घर पर वैसे रहने ही देते हैं अगर पेशेंट को तंग नहीं कर रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन दो के केसों में मैंने आफ्टर 6-7 मंथ बाद निकाला, एक में 1 साल के बाद भी निकाला। मान लो अगर कोई इन्फेक्शन नहीं है, कई बार रेयरली ऐसा हो सकता है कि उस वुंड से कोई इन्फेक्शन हो जाए थोड़ी, और मान लो बस तब तो चलो निकालने का बनता है। अदरवाइज कोई ज्यादा ना भी निकाले, जैसे ऑर्थो के जो अंदर पड़े रहते हैं स्टील के, नहीं कुछ होता तो नहीं। अगर आपने प्रॉपर उसकी जो प्रॉपर एसेप्टिक कंडीशन से प्रॉपर ओटी में केस किया हो तो चांसेस नहीं है ऐसे इसके, तो अच्छे रहते हैं। और जी सर डॉक्टर साहब। मात्रावस्ती सर कितनी अंतराल में देते हो? 15 दिन में या महीने में या 3 दिन में ऐसे? नहीं नहीं, मात्रा बस्ती तो वही मात्रा है जिसको हम डेली दे सके ना, वो तो डेली देते हैं कुछ दिन तो, जैसे 10-15 दिन तक तो मतलब एक हफ्ते। 15 दिन तक? हाँ, अच्छा, 15 दिन तो मिनिमम दे ही देते हैं जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। Thank you. Thank you so much, sir, for this wonderful session. Yep. If anyone having any doubts, you may please ask to sir. थैंक यू सर। हाँ जी,
डॉक्टर रॉबिन जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत। और कैसे हो? बढ़िया। हाँ जी सर, सुदाम आपके जी। आशीर्वाद से सब बढ़िया है सर। हाँ, ठीक है। सेशन चलो, आपने किया अटेंड? बढ़िया। हाँ जी, ठीक है, चलो ठीक है डॉक्टर साहब, गुरु बढ़िया। चरण स्पर्श। थैंक यू सर। थैंक यू बहुत। गुरु जी चरण स्पर्श। हाँ जी, हाँ जी, आशीर्वाद राहुल जी, आशीर्वाद बहुत बहुत। और आपकी भी कोई क्वेरी है? पूछिए, आपके होते मौका मिला नहीं तभी तो आज कुछ। और कैसा चला हुआ? बढ़िया है गुरु जी, बढ़िया। आपका अच्छा, आशीर्वाद है। ठीक है राहुल जी, ठीक है, बहुत अच्छा। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम आशीर्वाद जी। भरत जी, आशीर्वाद बहुत बहुत। बहुत ही अच्छा सेशन रहा सर। बहुत ही अच्छा, बहुत क्या बात। चलो, नए विद्यार्थियों को लाभदायक रहना चाहिए। गुरुजन तो चलो फिर करते रहते हैं, आप युवा सर चिकित्सक हो, मेन आप लोगों ने एग्जामिनेशन ही होता है सर, बाद में जाके जैसे क्लिनिक एस्टेब्लिश करे तो सर एग्जामिनेशन आपने बहुत अच्छे से समझाया। हाँ हाँ, चलो असली मेरा यह था कि बेसिक के ऊपर चर्चा कम होती है, तो अगर हमारे बेसिक फंडामेंटल जो है मजबूत हैं, अच्छे हैं, तो वो फिर अच्छा रहता है स्टूडेंट्स के लिए। जी, Do we have any other questions? सर Thank you so much, sir. Now, on behalf of the organizing committee, I would like to thank Dr. Nagin Pal sir for delivering such an insightful lecture. I would like to extend my sincere gratitude to our mentor, Dr. Devin Tirunaji, President of GD RAD, for his continued support, guidance, and blessings. I thank our director, Dr. Vandana Siroha ma'am, who is the guiding force for all the events at RAD. I would also like to thank Dr. Rajesh Kuteja sir, Secretary, Ministry of Ayush, for his participation and encouragement in all our endeavors. Most importantly, I would like to express our heartfelt thanks to all the gurus, shishyas, and other scholars for their presence and active participation for making this webinar a successful one. Thank you all. थैंक यू, नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते, नमस्कार।